سلام، احترام، آداب۔ پروگرام کے مہمان خصوصی اور افتتاح کار ڈی ایم سر، صدر محترم روح رواں شریمتی رشمی میم اور ہال میں موجود معزز خواتین حضرات، میں آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اننیا سنیدی ضلع یو جی کیا ہے اور فی الحال پی پی یو سے ایم ایس سی میتھمیٹکس کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے شاندار پروگرام میں شرکت کرنے اور اردو کے حوالے سے اپنے احساسات و جذبات کو بیان کرنے کا مجھے موقع فرمایا۔ اس موقع پر میں ہندوستانی تہذیب میں اردو کی ساجھیداری کے مطابق اپنے خیال یہ کہتے ہوئے ساجھا کرنا چاہوں گی کہ ہماری اردو اور ہندی جیسے بھارتی ثقافت کے ماتھے بندی۔ یوں تو اردو ندرشالیہ کے تحت اردو تربیتی مرکز کے مادھیم سے ہم نے اردو سیکھی، پر ہمارے استاد جناب نور عالم صاحب نے ہمیں صرف اردو نہیں سکھائی، ہم نے یہاں پر بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے یہ سلیقہ سیکھا۔ گرچہ اردو میری مادری زبان نہیں، پھر بھی مجھے اردو لکھنے پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا، اور 60-65 دنوں کی پڑھائی لکھائی کے دوران اردو کے ایک ایک حرف، ہجے، نقطے، لکھنے کا طریقہ، صحیح تلفظ، لفظوں اور جملوں کی تشکیل اور شریعت و ادبیت کے خوشگوار مرحلوں سے گزرتے ہوئے یہ مجھے اپنی ماں، بے شک میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے، مجھے الفاظ دیے ہیں، تہذیب و تمدن سے آشنا کیا ہے، لیکن اردو نے مجھے بتایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ اردو نے ہمیں یہ بھی سمجھایا ہے کہ کوئی بھی زبان کسی دھرم یا مذہب کی محتاج نہیں ہوتی۔ کچھ اساماجک لوگ اردو کو ایک خاص مذہب سے جوڑ کر ہندی اور اردو کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں خبر نہیں کہ پنڈت آنند نارائن ملا، پنڈت دیا شنکر نسیم، پنڈت برج نارائن چکبست، جگن ناتھ آزاد اور ایسے کتنے ہی نام ہیں، پریم چند، کرشن چندر، دش عظیمان، ایسے اردو کے حوالے سے بھارتی بھاشا اور ساہتیہ کو آسمان جیسی بلندی کو عطا کرنے میں ان کا کیا تعاون رہا ہے، یہ انہیں خبر نہیں۔ خیر، میں اردو اور ہندی کی محبت سے نفرت کرنے والوں کو بھی دعا دینا چاہتی ہوں، ساتھ ہی پیار سے انہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ نفرت میں نقصان ہے اور محبت میں برکت ہے۔ شکریہ۔ ہمارے کچھ بڑے بزرگ یہ مانتے ہیں کہ ہندی اور اردو دونوں جڑواں بہنیں ہیں، اور جناب منور رانا صاحب نے بھی اسی بابت کہا کہ سگی بہنوں کا جو رشتہ ہے اردو اور ہندی میں کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا۔ دنیا کا آدھار کیا ہے یہ ٹھیک تو معلوم نہیں، ہاں، پر اتنا میں کہہ سکتی ہوں کہ کچھ جو شبد ہیں آدرش، چنوتی اور سنسکار جو ہندی میں ہیں ان کا ہم پلہ اردو شبد نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح تازہ پانی، گلاب، سردی، بخار، دوا، پھول، ایسے کتنے ہی ہزاروں شبد ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں بغیر یہ جانے کہ ہم اردو بھاشا کے شبد استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی اردو کا ہی ہے۔ تو ان شبدوں کا جو مطلب ہے ان کی روح تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ان کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پٹنہ ضلع اردو سیل، ڈی ایم سر، اے ڈی ایم سر، رشمی میم کا، اردو ندرشالیہ ہمارے استاد جناب نور عالم صاحب کا، اس پروگرام کے سبھی متعلقین کا، اور آپ سبھی کا مجھے صبر کے ساتھ سننے کے لیے۔ اور یہ کہتے ہوئے ودا دیتی ہوں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو یاد رکھیے گا، کسی بھی زبان کی تاریخ بغیر ہسٹری جانے ہوئے، بغیر جغرافی جانے ہوئے مکمل نہیں ہو سکتی۔
हम आपको थोड़ा इंडिया की हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री, कदीम हिंदुस्तान की तारीख थोड़ी सी बताता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर जब मुसलमानों की आमद शुरू हुई, सब लोग बोलते हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए थे, लेकिन माफ कीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम 712 में आए थे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आमद पहली सदी से शुरू हो गई थी। और सबसे पहले मुसलमान इस रूहे ज़मीन पर जो आया था वो आया था केरल में, मालाबार की साहिल पर आया था, वहां से मुसलमानों की आमद शुरू हुई। पता आपको, आप जरा गौर से सुनिएगा, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे साथ चाइनीज की चंद लड़कियां उर्दू सीख रही थी। सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए। वो चाइनीज बोल रही हैं और मैं उर्दू बोल रहा हूं, तो हमसे बोली व्हाट इज दिस, हमने कहा आई डोंट नो। उसको मैं जब अंग्रेजी बोली, अंग्रेजी जैसे होने लगी। क्यों? अंग्रेजी वो भी जानती थी, अंग्रेजी मैं भी जानता हूँ, तो हम दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे थे। लेकिन जब वो चाइनीज बोल रही थी तो मैं नहीं समझ रहा था, जब मैं अपनी शीरी ज़बान उर्दू बोल रहा था उसे पल्ले नहीं पड़ रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम बोले, जो अपने ख्यालात का एक्सप्रेशन होता है जब हम किसी के सामने पेश करते हैं, अगर वो नहीं समझ रहा है, समझ रही है, इसका मतलब आपकी बात मुकम्मल नहीं हो सकती। याद रखिए, उर्दू एहतिजाजी ज़बान है। जब बाहर के लोग हिंदुस्तान आए, दोनों को, और आपको पता है हिंदुस्तान में सब लोग आजकल एक माहौल चला हुआ है, क्या हम लोग को नाउज़ुबिल्लाह बोल देते विदेशी हो। हमको किसी ने कह दिया प्रोफेसर ने मजाक में, तुम पाकिस्तानी हो। हमने कहा अच्छा, हमने कहा आप, तो मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। कहा कि देखो मैं जब मरता हूँ तो इसी हुए जमीन में दफन होता हूँ, और तुम मर गए हो तो पता नहीं ऐसे मजाक में जाते हैं। अब जरा सुनिएगा, उर्दू ज़बान जब यहाँ के लोगों से तालमेल हुआ, आप लोगों ने साउथ इंडिया का नाम सुना होगा, केरल, कर्नाटक, बेंगलोर, उस इलाके के बारे में बताऊं। जब वहाँ के लोगों से बाहर के मुसलमान जो आए, तो सिर्फ मुसलमान नहीं, यहाँ के गैर मुस्लिम जिनको आप ड्राविडी कहते हैं, एक जात है, उनसे आपस में जो एक दूसरे का कांटेक्ट हुआ, एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे से राब्ते में आए, तो एक जबान की जरूरत की बुनियाद पड़ी, उसे प्यारी जबान उर्दू का नाम दिया गया। उर्दू के नाम किताबों के मुताबिक, हमारे नॉलेज के मुताबिक 77 है। उर्दू के 77 नाम हैं, जिसमें से 17 नाम कॉमन है। और आपको एक बार बता दूं, शायद हमारी बात को अगर कोई सेकंड करे ना करे, लेकिन मैं बात फैक्ट कहता हूँ, रिसर्च उर्दू को दक्कनी कहा गया, उर्दू को सिंधी कहा गया, उर्दू को गुजरी कहा गया, उर्दू को हिंदुस्तानी कहा गया, और उर्दू का एक नाम हिंदी भी है। और याद रखिएगा, गांधी जी ने कभी उर्दू का लफ्ज़ उर्दू नहीं इस्तेमाल किया, गांधी जी ने हिंदी का नाम कभी हिंदी इस्तेमाल नहीं किया, गांधी जी ने उर्दू के लिए हिंदुस्तानी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि मुसलमानों और गैर मुस्लिम भाई बहनों, सब लोग मिलजुल कर रहो, तभी किसी ज़बान की तरक्की हो सकती है, तभी वो हिंदुस्तानी ज़बान हो सकती है। उर्दू हिंदी के अंदर लड़ाई न करो। और आप माफ कीजिएगा, यहाँ बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल पहले आप थोड़ा और चलिए। उर्दू जब शाहजहां के जमाने में आई, शाहजहां से पहले जब उर्दू आई, उर्दू की तरक्की क्यों हुई? बादशाह, किंग, शिमाली हिंद के किंग बादशाह उर्दू के फरोग के लिए कोशा थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक के साथ उर्दू दक्कन के अंदर जाती है, तो उसको सरकार की सरबराही हासिल होती है, पुष्पराही हासिल होती है, उर्दू वहां तरक्की करती है, अवाम उर्दू बोलती है, बादशाह उर्दू बोलता है, सारी दुनिया उर्दू बोलती है। उर्दू का फरोग क्यों का मुमकिन ना होगा? लेकिन अफसोस, जब फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ, सुनिएगा गौर से, अब आपको सच्चाई बताता हूं, हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ने मुसलमान को, गैर मुस्लिम को तोड़कर दो मुल्क बना दिया। पता है क्यों? डिवाइड एंड रूल इन इंग्लिश इज कॉल्ड, कि इंसान को आपस में लड़ा दो और अलग कर दो। जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान को करने वाला अंग्रेज था, उर्दू हिंदी को अलग करने वाली अगर कोई यहाँ बदनुमा शख्सियत जिसे अंग्रेज कहते हैं, मैं दलील के साथ बात करता हूँ। सुनिए, उर्दू का सबसे बड़ा मुस्लिम अगर अंग्रेज में कोई है तो उसे दुनिया जॉन गिलक्रिस्ट कहती है। फिर से सुनिएगा, संजीदगी के साथ सुनिएगा, बस 3 मिनट मेरा टाइम बचा हुआ है, मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। कि उर्दू का अंग्रेज में सबसे बड़ा मुहसिन, सबसे बड़ा मुरब्बी, सबसे ज्यादा शफकत देने वाला उर्दू जबान को अगर कोई अंग्रेज में था तो उसे दुनिया जॉन गिलक्रिस्ट जानती है। जॉन गिलक्रिस्ट ने तकरीबन 21 किताबें लिखी हैं, माफ कीजिएगा 21 किताबें लिखी हैं। और जॉन गिलक्रिस्ट के बाद एक अंग्रेज आया और कहा कि देखो अरबी हो और हिंदी में क्या फर्क है वो बता देता हूँ, एकदम बुनियादी फर्क।
देखिए, जब इंसान अपना झोली फैलाता है ना, तो फकीर को कोई रोटियां देता है ना, किसी को कोई सिक्का दे देता है। अगर कोई खा रहा हो तो एक रोटी उसमें से तोड़ के एक गरीब को दे देता है। करता है कि नहीं करता है? आप सुनिएगा, अंग्रेज ने उसको जाके कहा कि देखो इन चीजों के अंदर फर्क कैसे किया जाएगा। तो जो उर्दू के अंदर अरबी अल्फाज हैं, फारसी अल्फाज हैं, उस वोकैब को, उस वोकैबलरी को, उस ज़ख़ीरे अल्फाज को वहां से निकाल दो और वहां पर संस्कृत के अल्फाज डाल दो, ताकि इससे एक नई ज़बान कोई ना कोई पैदा होगी। तो सर अभी बता रहे थे 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज हुआ था, कायम हुआ था, और फोर्ट विलियम कॉलेज कायम होने के पीछे उर्दू की तरक्की बिल्कुल न थी। गलती से कभी कभी अच्छे काम हो जाया करते हैं। अंग्रेज ने तो अंग्रेजी हुक्म को उर्दू सिखाने के लिए आए थे, लेकिन गलती से उर्दू की तरक्की हो गई। उधर से मीर अमन आ गए, उधर से बहादुर अली हुसैनी आ गए, उधर से लड्डू लाल जी आ गए, और न मालूम ऐसे कितने लोग आए और उर्दू चल पड़ी। या पूछेगा, उर्दू जब 1860 के बाद हिंदी की बुनियाद बाज़ाब्ता पड़ी, माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा अदब हिंदी के मुकाबले में उर्दू में है। और अभी बहुत अच्छी से बात कर रही थी मैडम, बता रही थी, और लड़की यहाँ से भी बहुत अच्छी उर्दू बात कर रही थी। माफ कीजिएगा, उर्दू में संस्कृत भी है, उर्दू में अरबी भी है, उर्दू में फारसी भी है, उर्दू में तुर्की भी है, माफ कीजिएगा उर्दू में अंग्रेजी भी है। वरना यहाँ जितने बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हैं, हमें स्टेशन की उर्दू बता दें, बहुत मेहरबानी होगी। और आज से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं, हम फारसी अरबी के जानकार हम बता सकते हैं, लेकिन वो मकबूल नहीं होगी। ज़बान वही होती है जो दूसरा उसको सैल्यूट करे, उसको अपना ले, उसे कहते हैं ज़बान। अब मैं बस, क्योंकि हमारे पास एक जैसे क़यामत के लिए मुनकर नकीर का सवाल जवाब होता है, तो उसी तरह का थोड़ा टाइम कम है। मैं आपको 2-3 मिनट बात करके अभी खत्म करता हूँ कि इंशाअल्लाह बस 2 मिनट, कोई बात नहीं, नाश्ता करके गलत पटना प्रीवियस कॉलेज जाने वाला हूँ, बस 2 मिनट। आपके नाश्ता की मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं है। सुनिए, उर्दू की रोजमर्रा की जिंदगी में, पता आपको यूपी के अंदर उर्दू में कार्ड नहीं छपता है, शादी होगी ना, उर्दू सुनिएगा लखनऊ से, तो क्या कहेंगे पता, साली को बोलेंगे ये मेरी निस्बती बहन है। क्या बोलेंगे? ये मेरी निस्बती बहन है। साली नहीं बोलेंगे, क्योंकि साली तो ही है, सच है, लेकिन शादी का कार्ड जब छपेगा तो हिंदी में छपेगा। मैं हिंदी की बुराई नहीं करता, लेकिन आप अपनी तहसील की अलामत है। सबूत उर्दू के मानने वाले तो उर्दू पेश करना चाहिए। नंबर 1, शादी कार्ड आप किसी को देना हो उर्दू में लिखा है। ये नाला, नदी, नाला, सड़क, उस पर उर्दू में बाकायदा बैनर लगना चाहिए। और साथ में सबसे बड़ी बात, हम लोग उर्दू ना अखबार खरीदते हैं, ना उर्दू मैगजीन खरीदते हैं। माफ कीजिएगा, आज उर्दू अखबार वाले नाला है कि हमारा अखबार नहीं खरीदा जाता। तो इस वास्ते आप लोग उर्दू की तरफ ध्यान दीजिए। लंबी लंबी तकलीफ तो की जा सकती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अमली जामा जब तक नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कह दिया था कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बासित हमीदी साहब।